Okay, so good morning, all of you. Yesterday we left the chapter at the topic where we were discussing non-current and current liabilities. We have already discussed that non-current liabilities, which are also called as long-term liability, they are the liabilities or the obligations of the business which are to be paid in a period more than 1 year or a longer period of time. On the other hand, short-term liability or current liabilities are the liabilities which are to be paid in a period less than 1 year. So can you please give me the example of current liability? Any one of you? Examples of current liability. Raise your hand, those who know the answer. Okay, Harmeen Kaur wants to answer. Yes, Harmeen? Credits in grocery shops. So we are discussing current liability. Na? Current liability, basically, you are supposed to tell me from the businessman point of view, what is the liability of the businessman, which is to be paid in current time period, like short time period mein jo pay kar raha hai. Yes, from businessman point of view, not from the customer point of view. Buying stocks or things from big wholesale. बिजनेसमैन होलसेलर से थोड़ी लेगा, बिजनेसमैन तो सेल करता है. बिजनेसमैन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट manufacturer, a factory owner who is manufacturing something. So what he will buy? Raw material. Raw material he will buy, definitely raw material he will buy. So what are you saying? In case he buy raw material on credit, it will become his current liability. Okay, you are right. Yes. So please tell me, what do we call it when suppliers supply us goods on credit? What do we call them? This is our business. ठीक है जी, ये हमारा बिजनेस है. अभी इसने रॉ मटेरियल लिया, किससे लिया? दिस इज द पर्सन जिससे इसने रॉ मटेरियल लिया. सो हमारे लिए वो बंदा क्या बन गया? दिस पर्सन हु इज द सप्लायर. What do we call him in accounting terminology? I have told you earlier also. Credit. Devanshi is saying credit कहते हैं इसको. Creditor. Creditor कहते हैं. It is this person, the supplier is called as creditor. ठीक है बेटे, तो पहले बार-बार आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे हमने टर्मिनोलॉजी सही यूज करनी है. ठीक है जी. They are or this person or any party, यहाँ पे कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, यहाँ पे कोई और सप्लायर जो है वो भी अपने आप में हो सकता है बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर, जो कुछ लाइक स्पेयर पार्ट्स. फॉर एग्जांपल, ये कंपनी गाड़ियां बनाती है, तो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टायर खुद नहीं बनाती. फॉर एग्जांपल, सो टायर they are purchasing from this person. He is a manufacturer of tires. So this person is providing like supply of tires to this business. So he will become, if he provide on credit, then he become creditor. If he provide on cash, he will become nothing but a supplier. ठीक है जी. तो creditor is a example of current liability. It is a current liability. Other than this, any other point? Any other point? Any other type of current liability? Snehal, yes, bete. Snehal. Paying the bills of electricity. Okay, you are right. Paying the bills of electricity. See, अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ और बिल आया ही नहीं अभी तक, तो हमारी वो लाइबिलिटी कैसी होगा? बिल हमारा आ गया and we have not paid. We have got the bill, we have not paid it. 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, 3 महीने हो गए. Sorry. So that will be called as liability. वो हमारे लिए liability बन जाएगा because we have got the bill but we have not paid it. At the end of the month बिजली का बिल आया, हमने पे किया, तो वो liability नहीं है. वो हमारे लिए expense है, खर्चा हुआ, हमने पे कर दिया, that's all. लाइबिलिटी बन जाता है जब हम उसको पे नहीं करते हैं, उधार कर लेते हैं. गॉट इट?
So that type of expense is called as, एक और नया word यहाँ पे हमारे पास आ रहा है terminology में, ये terms मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, you can write it down. The other expense which is coming to us, it is outstanding expense. इसको हम क्या बोलते हैं? It is called as outstanding expense. ठीक है बेटे, outstanding. What is the meaning of this word now? हाँ जी, हरमन, you want to say something? मैम वो टाइप्स बतानी थी करंट लाइफ। ओके ओके, पहले ये समझ लेते हैं फिर आप बताना। इसके बारे में anyone wants to say something? Any one of you? Outstanding expenses. चलिए मैं बता देती हूँ बेटे, एक्सपेंस मतलब, वासु wants to say yes, वासु? मैम जो हमने मैम अभी पेमेंट जैसे रेंट देना है वो ही होगा। जी जी जी, वेरी गुड। सी एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, दैट इज एक्सपेंस। अगर वो हम टाइमली पे कर देते हैं वो हमारा एक्सपेंस ही रहता है। अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मींस जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर ने ऐसे बोला, आप ये सोच लो आपका बिजली का बिल है या आपका कोई रेंट है, आप पे नहीं कर रहे हो, वो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मींस दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड टू गेट मनी फ्रॉम यू, लाइक यू हैव नॉट पेड। आर यू गेटिंग इट? जब आपने बड़े सारे लोगों को उधार देना हो तो वो आए थे ना दरवाजे पे पैसे लेने के लिए, तो दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड टू गेट मनी बैक फ्रॉम यू, they are called as outstanding. Outstanding, they're standing outside to get money. This is just a like trick to remember this. Otherwise इसका मतलब है outstanding means which is standing, still standing expense we have not paid. So electricity bill if not paid for 1, 2, 3 months, it will be called as outstanding expense. Otherwise electricity bill is called as an expense. Normal. Clear है बेटे? Is it clear? So outstanding expense is also clear to you. Outstanding expense means the amount of the expense which is not, which is due. आप लिख लीजिए, please write it down. Creditor का पहले meaning लिखिए, what is the meaning of creditor? लिखिए heading लिख के creditor. Creditors are the suppliers. Creditors are the suppliers who provide raw material or goods on credit to the business. Creditors are the suppliers who provide raw material or goods to the business. Sifatpreet Kaur, Sifatpreet bete and Chahat, you both of you have joined at 12 minutes late to the class. What is the fun of joining late? Please be more regular. Every day your class teacher is putting a message in the group ki bete you are supposed to be on time. See, right now I am teaching and then I will get distracted when I see some students are like popping up here in the waiting room. So please try to be on time. Okay, so creditors are clear. These are the persons, parties or the businesses or the suppliers who provide goods or raw material to the business on credit. Done. Then outstanding expense लिख के इसका मीनिंग भी लिख लीजिए। ये सभी से के एग्जांपल है, ये भी करंट लायबिलिटी की एग्जांपल है। It is also to be paid in a period of less than 1 year. Outstanding expense के अंदर आप लिखिए, these are the expenses which are, मैं यहाँ लिख देती हूँ, which are due but not paid. These are the expenses which are due but not paid. Due मतलब बिल आ गया हमारा बिजली का बट हमने पे नहीं किया। एक तो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं पे बिल ही नहीं आया, तो तब तक वो इट्स ओके, दे आर प्रोवाइडिंग अस विद द इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, वी विल पे देम एट द एंड ऑफ द मंथ. But when it becomes due and we have not paid, then it is called as outstanding expense. For example, outstanding electricity bill, outstanding rent, outstanding wages, outstanding salary, कोई भी वर्ड हो सकता है. ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको बता दिया. इसको रब कर दें. इसकी डेफिनेशन इज डन. ड्यू बट नॉट पेड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. वन मोर वर्ड, करंट लायबिलिटी में न्यू वर्ड है हमारे पास,
that is bank overdraft. Any one of you have any idea about this? You can raise your hand. Bank overdraft क्या होता है? What is the meaning of bank overdraft? No one? चलिए, no problem. Let me explain you. Bank means, bank तो पता ही है आपको. Over. Over means, इसको दो पार्ट में कर देते हैं. Over अलग, समझने के लिए लिखना इकट्ठे ही है, और ड्राफ्ट अलग. Overdraft. Overdraft का मतलब होता है बेटे, when you have withdrawn more money from your bank, you don't have that much amount in your bank balance, but you have withdrew more amount. अब आप बोलोगे मैडम अगर हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए है, how can we withdraw 15,000? It is not at all possible. This is not possible for us because we are normal households. We have normal bank accounts. We have saving accounts in the banks. We are here talking about businessmen. जो businessmen होते हैं ना बेटे, उनके current account होते हैं बैंक में. तो when they have current account, they have big businesses with the bank. उनका करोड़ों रुपया बैंक में आता है, करोड़ों रुपया जाता है. तो sometimes it happens that in case businessman ने एक check pass कर दिया, for example, check काट के दे दिया 2,20,000 का एक बंदे को पे कर दिया, ठीक है, for example. अब उस बंदे ने 1 मंथ के बाद वो चेक लगाया बैंक में, आपके बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में सिर्फ 2 लाख रुपीस है, नॉट 2,20,000 नहीं है. तो व्हाट डू यू थिंक, बैंक उस चेक को बाउंस कर देगा? बाउंस कर देते जनरली चेक. बैंक कहता है इसमें तो पैसा ही नहीं है, 2 रुपए भी कम हो गए तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा. बट यहाँ पे बात आ जाती है बिजनेस की. तो बैंक को पता है कि ये जो बिजनेस है इसका मेरे साथ बहुत पुराना डीलिंग्स है, बहुत बड़ा अकाउंट है, इनका लाखों की ट्रांजैक्शंस होती हैं. किसी दिन इनके अकाउंट में करोड़ों रुपया होता है, किसी दिन इनके अकाउंट में लाखों रुपए होते हैं, किसी दिन इनके अकाउंट में कम बैलेंस हो जाता है. सो बैंक कभी भी उस कस्टमर की, अपने बिजनेस, जो बिजनेसमैन उसका कस्टमर है, उसकी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता. तो व्हाट डू बैंक यूज टू डू, वो उनका चेक क्लियर कर देते हैं. भले उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, वो 2,20,000 का चेक क्लियर कर देंगे, और वो 20,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बन जाएगा बैंक से ओवरड्राफ्ट. ओवर मींस एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया है, तो उस बंदे का जो, उस बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है वो -20,000 हो गया. दैट अमाउंट इज टू बी पेड बैक टू द बैंक विद इन फ्यू डेज, लाइक 45 to 50 डेज के बीच में. जैसे क्रेडिट कार्ड का होता है ना, क्रेडिट कार्ड भी तो यही होता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, बट यू आर परचेजिंग, यू आर डूइंग शॉपिंग कर लेते हो, आप बाद में एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर पेइंग बैक टू द बैंक. दैट इज अ टाइप ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट. समझ आ गया? व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? व्हेन अ बिजनेसमैन विथड्रू मोर मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट देन ही एक्चुअली हैज, this will become bank overdraft. Bank will charge some interest on this overdraft. Bank interest भी charge करता है, and within a period of few days to 1 or 2 months he has to pay it back. ठीक है, समझ गया? अब आप बोलोगे मैम कल को वो वापस ना करे फिर क्या हो जाएगा, उसकी मर्जी है, वो नहीं देगा, बैंक क्या करेगा? तो ऐसी सिचुएशंस में अराइज, बट एक्चुअली कल आपको शायद परसों बताया था, क्रेडिट वर्दीनेस एक वर्ड होता है हमारे पास. क्रेडिट वर्दीनेस मींस बैंक पहले देख लेता है कि ये बंदा कैसा है जिसका हम चेक क्लियर कर रहे हैं. अगर उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, उसका बैंक का पुराना रिकॉर्ड अच्छा है बिजनेसमैन का, देन ओनली बैंक उसको ओवरड्राफ्ट देता है, अदरवाइज बैंक उसको ओवरड्राफ्ट नहीं देता. इज इट क्लियर बेटे? सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटी. नाउ विल दिस पॉइंट बी क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? क्लियर है बेटे? तो 3 ही मेजर एग्जांपल्स हमारे पास है, आउटस्टैंडिंग खर्चे, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स, द एग्जांपल्स ऑफ करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी की एग्जांपल कोई भी मुझे बच्चा आप में से दे सकता है? एनी वन ऑफ यू? नॉन करंट लायबिलिटी, रेज योर हैंड, आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट. ओके, हरमन वांट्स टू आंसर. हरमन? मैम लॉन्ग टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट बेटे, डेट वर्ड नहीं यूज करना है, डेट इज समथिंग एल्स. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन. कौन सा वर्ड यूज करना है? लॉन्ग टर्म लोन्स कैन बी देयर. ठीक है बेटे, डेट हम आगे पढ़ेंगे. डेट का वर्ड का मीनिंग होता कर्ज ही है, बट इट इज अंडरस्टूड इन सम अदर सेंस. सो इसको
इरेज कर दूं यहाँ से. Have you written all these words? Bank overdraft, outstanding and creditors. Okay. So the next point which we are going to discuss, non-current में ज़्यादा कोई बड़ी examples नहीं है, long-term loans are the examples, and rest we will discuss in the upcoming class. Okay. So next we are going to discuss about assets. So you have some idea of assets. What are the assets of the business? Any one of you? What are the assets of the business? Archie is there. I can see Archie. Beta, you have any idea? Hardik Gupta can answer. Hardik. हार्दिक बेटे बोलिए. Yes, you are unmuted. Company. Sorry. Assets are the properties which are owned by the company or a individual. Or an individual. Very good. So assets is the property or the assets. हम assets word इतना यूज करते हैं कि हमें इसकी बदले में तो वर्ड ही नहीं आता. So this is the thing or valuable item which is owned by the business which will help it to earn some money. ठीक है. तो पहले मैं आपको दो तरह की क्लासिफिकेशन बता देती हूँ. एक होती है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास करंट एसेट्स. जैसे हमने लायबिलिटी को टू पार्ट्स में किया ना बेटे, सिमिलरली हम एसेट्स को भी टू पार्ट्स में स्टडी कर रहे हैं. वन इज नॉन करंट एसेट्स एंड अदर आर करंट एसेट्स. तो पहले इसको समझ लेते हैं. ये तो एक चीज कॉमन है, नॉन करंट फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, करंट एसेट फॉर अ पीरियड लेस देन 1. ठीक है जी. नॉन करंट और करंट क्लियर है. अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो कैन यू टेल मी एग्जांपल्स ऑफ योर नॉन करंट एंड करंट एसेट्स? Anyone? Harman? Yes, बेटे. Ma'am, machinery used in business is non-current asset. Machinery used in business is a non-current. Very good. And current asset? Current asset वो नहीं अभी मैम दिमाग में आ रहा है. चलिए, no problem. You are very right. Machinery which is used in the business is a non-current asset. Long term में चलता है. And raw material used in the business is a current asset. हमने raw material लाया. Raw material we have purchased. Within a period of 1 year उस raw material को finished goods में produce करके convert करके we will sell it in the market and earn money. Current assets. एसेट वही होता है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल हेल्प अस टू अर्न मनी. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसेट्स. लिखनी नहीं है, समझने के लिए. एसेट हर वो चीज जो हमें पैसा कमाने में हेल्प करे वो हमारा एसेट है. ठीक है. जैसे कई बार आपने सुना होगा कोई दुकानदार कहता है कि ये मेरा सेल्समैन इतना अच्छा सेल्समैन है ना, इसके बेचने से सारी चीजें बिक जाती है, कस्टमर इससे बड़े खुश होकर लेते हैं, ये मेरी दुकान का एसेट है. समझ गए? तो ह्यूमन रिसोर्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एन एसेट ऑफ द बिजनेस इफ ही और शी इज टू गुड इन द बिजनेस. ठीक है. तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं एसेट्स हर वो चीज जो हमें पैसा कमाने में हेल्प करे. तो मशीनरी हमें पैसा कमाने में कैसे हेल्प करती है? हाँ. और रॉ मटेरियल हमें पैसा कमाने में कैसे हेल्प करता है, मैं आपको दोनों का बता देती हूँ. मशीनरी हमें हेल्प करती है. विद द हेल्प ऑफ मशीनरी हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचते हैं. तो फिनिश गुड्स ही बिकते, रॉ मटेरियल तो बिकता नहीं. तो मशीनरी हमें कन्वर्जन प्रोसेस में हेल्प करती है. 100 रुपए की चीज से हम 500, जैसे 100 रुपए का वीट लेके हम 500 रुपीज के ब्रेड बना देते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं. तो जो मशीनरी हमारी है वो हमें 5 टाइम्स पैसा कमाने में हेल्प कर रही है वहां पे. तो मशीनरी को हम बेचते नहीं है, बट मशीनरी से सामान बना के हम बेचते हैं. गॉट इट? सो नॉन करंट एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच आर नॉट परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल.
Please note these lines in your here or in your notebook, wherever you want to write. Non-current asset वो होता है which are not purchased for the purpose of resale, but they are purchased to be kept in the business for a period more than 1 year, and it will help the business to increase its earning capacity. 3 lines मैंने आपको बता दी हैं, आपने तीनों लाइनें यहाँ पे अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी है। नॉन करंट एसेट क्या होता है? बलप्रीत, आई विल आस्क यू, पहले मेरे को फिनिश करने दो अपनी बात। नॉन करंट एसेट वो होता है, नंबर 1, इट इज एन एसेट विच इज परचेज्ड नॉट फॉर द रीजन ऑफ या पर्पस ऑफ रीसेल। पहली लाइन रीसेल नहीं करना है। नंबर 2, it is purchased to be kept with us for a period more than 1 year. Number 3, it is purchased for the purpose of increase in earning capacity of the business. ये हमारी क्या बढ़ाता है? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। पहले मेरे पास 2 मशीनें थी, 2 मशीन से मैं एक ईयर में 10 लाख रुपए कमा रहा था। मैंने 2 और मशीन खरीद ली। Why I have purchased 2 more machines? क्या मुझे मशीनें बेचनी है? No, I want to increase my earning capacity बढ़ानी है, मुझे अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। So this is the purpose why I am purchasing non-current assets. Yes, Balpreet, you can ask now. Balpreet. मैम कहना था धीरे बोलो थोड़ा। धीरे बोलो, ओके। कई बच्चों को आवाज आती नहीं है, वो बोलते मैम आवाज नहीं आ रही है। धीरे धीरे मीन्स वो डेफिनेशन लिखनी थी मैम, आप बोल ही जा रहे हो। ओके ओके, सो सॉरी, आई थॉट यू आर सेइंग कि साउंड का वॉल्यूम नीचे करो, स्पीड कम करो। नो नो मैम, वो नहीं। यस मैम। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी मैं फिर से बता देती हूँ। 3 points I have told you. Number 1, non-current assets are the assets which are purchased. मतलब ये पूरी लाइन मैं बोल तो रही हूँ, आप नहीं भी लिखना चाहो तो ना लिखो, जो मेन उसकी जिस्ट है वो जरूर लिखिए। पहला पॉइंट था नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, रीसेल का पर्पस नहीं है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है केप्ट विद अस फॉर अ पीरियड मोर देन 1 year, लॉन्ग पीरियड के लिए हमने उसको अपने पास रखना है। थर्ड पॉइंट है इट विल हेल्प टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, 3 मेजर पॉइंट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। नॉन करंट एसेट्स हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है, हमारे पास लॉन्ग टर्म में रहते हैं और हम इनको बेचते नहीं है। ठीक है जी, दिस इज नॉन करंट एसेट। एग्जांपल्स लिखिए। नॉन करंट एसेट की एग्जांपल पहले तो मशीनरी होगी, और क्या हो सकती है? एनीवन एल्स? चलिए मैं बता देती हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, आप पूरा लिख लेना। L&B जब ऐसे लिखा हो, इट मींस लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, इस तरह से जब हम लिखते हैं, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, समटाइम्स वी यूज, बट यू आर सपोज्ड टू, मेरे पास यहाँ जगह कम है तो मैंने ज्यादा लिखनी है, आप पूरा लिखना, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी, फर्नीचर कैन बी देयर, मैंने आधा ही लिखा, आप पूरा लिख लेना। लैंड एंड बिल्डिंग कैन बी देयर, फर्नीचर कैन बी देयर, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी भी कहते हैं। व्हीकल्स कैन आल्सो बी देयर, सम मोटर व्हीकल्स कैन बी देयर, ऑफिस इक्विपमेंट्स कैन बी देयर, जैसे कुछ कंप्यूटर या कोई और ऑफिस इक्विपमेंट्स, दे कैन आल्सो बी देयर। मोटर व्हीकल्स, सो एंड सो, आपके पास और बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं। देन लेट्स कम टू द करंट एसेट्स। तो 2.1 हमारा पहला, ये रॉ मटेरियल हमने क्यों खरीदा? हम इस रॉ मटेरियल को अपने पास रखना चाहते हैं। व्हाई वी हैव परचेज्ड? वी हैव परचेज्ड रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश्ड गुड्स टू सेल इट इन द मार्केट। व्हाट वी वांट फ्रॉम दिस? लिखिए अब इसकी डेफिनेशन। करंट एसेट्स आर द एसेट्स which are purchased for the purpose of resale, for the purpose of resale. These assets will be converted into cash. These assets will be converted into cash in a period less than 1 year, या within 1 year, एक ही बात है।
ठीक है, इन अ पीरियड लेस देन 1 ईयर और विद इन 1 ईयर। ठीक है जी, इनको शॉर्ट लिव्ड या एक्टिव एसेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एक्टिव एसेट्स भी कहते हैं और इनको शॉर्ट लिव्ड भी कहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ छोटी होती है। ठीक है जी, जैसे हमारे घर में अगर बात करें, किचन में जो राशन लेके आते हैं एवरी मंथ, बाय द एंड ऑफ द मंथ राशन खत्म हो जाता है सारा हमारे पेट में, तो वो हमारे लिए है तो एसेट है, पर वो कौन सा एसेट है? करंट एसेट है, शॉर्ट लिव्ड एसेट, करंट एक्टिव एसेट। ओके जी, एग्जांपल्स लिख लेते हैं। करंट एग्जांपल, करंट की एक तो हो गई रॉ मटेरियल, दूसरा क्या हो सकता है? अब आप बोलोगे कैश तो ऑलरेडी कैश है, इसको क्या कैश में कन्वर्ट करना, बट कैश को हम करंट एसेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि कैश हमारे पास लॉन्ग टर्म में तो नहीं ना रहता, वो हमारे पास चेंज होता रहता है कैश। जैसे आज इतने पैसे हैं, कल कम होंगे, परसों ज्यादा होंगे, सो कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, अदर देन दिस वी कैन हैव डेटर्स। यस, वन मोर न्यू वर्ड, डेटर्स। स्पेलिंग आपको दिख रही है क्लियरली, DEBTORS, डेटर्स। इसको लिखते हैं डेबिटर्स, बोलते हैं डेटर्स। बी इज साइलेंट, बी को नहीं बोलना, क्या बोलना है? डेटर्स। ठीक है, अब याद रखना, नेक्स्ट टाइम किसी ने मुझे डेबिटर बोला फिर मैं पकड़ूंगी। इट इज डेटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सी, क्रेडिटर और डेटर ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। क्रेडिटर वो बंदा होता है, मैं आपको एक अभी डायग्राम सा बना के बताती हूँ। ये मेरा बिजनेस था, पहले भी था ऐसा ही बिजनेस है, मंदिर जैसा दिखता है जो, दिस इज माय बिजनेस। इस बिजनेस को एक बंदा है सप्लायर, वो गुड्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये है मेरा बिजनेस। इस बिजनेस को एक बंदा जो सप्लायर है गुड्स प्रोवाइड करता है क्रेडिट को, और इस बंदे को हम कहते हैं क्रेडिटर। इसने इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, बिजनेस ने उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना भी दिए। फिनिश गुड्स बना के इसने भी तो आगे किसी को बेचनी है, अब इसने आगे किसी को बेच दिए, उस बंदे को हम बोलते हैं इसका कस्टमर। क्या बोलते हैं? कस्टमर, जिसको आपने गुड्स बेच दिए। अब कस्टमर कहता है मुझे भी उधार पे बेचो, पैसा नहीं है अभी, अभी आप मेरे को दे दो। फॉर एग्जांपल ये एक दुकानदार है, शॉपकीपर होगा, इसने खरीद ली, ये कहता मैं आगे सेल करूंगा फिर आपको पैसे बाद में वापस करूंगा, अभी मुझे क्रेडिट पे दे दो। तो जो मेरा कस्टमर, जिसको मैं गुड्स जो है क्रेडिट पे सेल करती हूँ, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेटर ऑफ द बिजनेस। क्या बोलते हैं? डेटर ऑफ द बिजनेस। अब याद रहेगा ये, इसको रब कर देती हूँ कंफ्यूजन ना हो आपको, ताकि so this is something which you are supposed to keep in mind. रॉ मटेरियल जो हमें प्रोवाइड करता है क्रेडिट पे, जो हमारा सप्लायर है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, क्योंकि उसने हमें क्रेडिट दिया है। डेब्ट का मतलब DEBT, डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने बोला था यहाँ पे डेब्ट कि मैडम जो हमारे डेब्ट्स होते हैं, तो डेब्ट्स का मतलब होता है कर्ज। कर्ज मतलब जो हमने किसी को कर्ज दिया, तो ये मेरा एसेट है बंदा। इस बंदे ने मुझे पैसे वापस करने हैं, इस बंदे ने मुझे पैसे वापस करने हैं, मैंने इसको गुड्स दे दिए क्रेडिट पे, यहाँ मैंने लिखा क्रेडिट पे गुड्स दे दिए, और ये है मेरा कस्टमर, और इस कस्टमर को मैं क्या बोलूंगी? डेटर बोलूंगी। क्या बोलूंगी? डेटर बोलूंगी। क्लियर है बेटे? इज इट क्लियर टू यू? ओके, प्लीज इसकी डेटर की डेफिनेशन लिख लीजिए, थोड़ी सी एक लाइन में मीनिंग लिखवा देती हूँ। डेटर या डेटर्स, डेटर्स आर द कस्टमर्स, डेटर्स आर द कस्टमर्स to whom goods are sold on credit by the business. बिजनेस ने उनको गुड्स क्रेडिट पे सेल कर दिए। ठीक है जी, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस
बस ठीक है, इतना मीनिंग समझ आ गया आपको, दैट्स क्लियर। अपने दिमाग में भूल जाता है तो किसी भी शॉपकीपर की एग्जांपल ले लो। हमने शॉपकीपर से उधार पे, यस सिफतप्रीत, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस बेटे। मैम अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि हम अगर कोई राशन लेके आते हैं तो वो 1 मंथ बाद खत्म हो जाता है, तो वो हमारा एसेट कैसे हो सकता है? उससे हम मनी थोड़ी अर्न कर रहे हैं। You are right. Actually, it is used for consumption purpose ना। तो फॉर द टाइम बीइंग, जैसे हमारे पास स्टॉक है ना, वो जब तक हमारे पास स्टॉक पड़ा है हमारे गोडाउन में तो हमारा एसेट ही तो है। अगर हमारे पास वो नहीं होगा तो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं चल पाएगी। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, आपका बिजनेस चल रहा है, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, विद इन दिस मंथ हमारा रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा, बट हम उस रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट कर देंगे ना फाइनल गुड्स बना के। वो तो घर वाली एग्जांपल थी, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन बिजनेस, मतलब वो जो राशन वाली बात नहीं करी, ठीक है। राशन इज एन एग्जांपल फॉर हाउस होल्ड के लिए। देखो, जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए उसको फ्यूल चाहिए, उसका फ्यूल क्या है? राशन है उसका। तो राशन होएगा तो वो चलेगा, चलेगा तो पैसे कमाएगा। अब मैं हूँ, मैं पैसे कैसे कमाऊंगी? पढ़ा के। पढ़ाने के लिए मुझे फ्यूल चाहिए, फ्यूल के लिए क्या चाहिए? राशन चाहिए। सो इनडायरेक्टली इट हेल्प्स मी टू अर्न मनी, ठीक है। वैसे ये बिजनेस में नहीं लग रहा है, इसको साइड कर देते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉ मटेरियल इज द एसेट बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश बाय मेकिंग इट एज फिनिश्ड गुड्स, ठीक है जी। यस। आप बाद में वैसे ये भी पढ़ोगे, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, जो हमारे स्टोर में और सामान होता है कंपनी में, जैसे एसेट्स है, स्टेशनरी का सामान है, पेपर्स हैं, पेन है, स्टेपलर है, ये सारी चीजें they are also termed as assets, they are also consumed। पेन है, यूज होगा, खत्म हो जाएगा, बट उसको भी हम एसेट ही लेते हैं। एसेट क्यों लेते हैं? क्योंकि बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑल दीस थिंग्स हेल्प अस, ठीक है। सो इट प्रोवाइड एड, सो दीज आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। एग्जांपल ले लिया आपने, करंट एसेट्स क्लियर हो गए। ओके, एक हमारा पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया है, लेट्स से इट्स नॉट मिस्ड एक्चुअली, आई वांट टू क्लियर दीस टू पॉइंट्स। तो नॉन करंट और करंट सबको क्लियर हो गई है विद एग्जांपल, विद डेफिनेशन। अब नॉन करंट की बेटे दो टाइप्स होती हैं, आगे वो बता देती हूँ आपको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। वो कौन सी होती है? एक होती है हमारे पास टेंजिबल एसेट और दूसरे हमारे पास होते हैं इनटेंजिबल एसेट, ठीक है जी। टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आपने शायद ये वर्ड पहले भी सुना होगा, कभी कंप्यूटर में भी सुना होगा। टेंजिबल आर द थिंग्स व्हिच वी कैन सी, व्हिच वी कैन फील, व्हिच वी कैन टच। टेंजिबल हम उन चीजों को कहते हैं जिसको हम टच, जैसे कंप्यूटर में पढ़ा था ना, हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन है, कीबोर्ड है, वी कैन सी एंड वी कैन टच। बट इनटेंजिबल वो चीज है जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर एप्लीकेशंस है, वी कैन यूज देम बट वी कांट सी देम, so that software becomes the intangible assets. So here in the business also there are two types of assets. One is tangible assets, the others are intangible assets. Right? Its definition आप लिखिए, फटाफट लिख लीजिए। Tangible assets are the assets which can be seen and touched. That is लिखिए ना, i.e. it has physical appearance या physical existence, like land and building and machinery and furniture and so on. ठीक है जी, एग्जाम्पल क्लियर, मीनिंग क्लियर, टेंजिबल एसेट क्लियर है। टेंजिबल एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? हम इनको फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हैं, दिखते हैं, फिक्स हैं, तो इनको फिक्स्ड एसेट्स भी बोल देते हैं। ठीक है जी, समझने के लिए बता दिया आपको। उसके बाद आ जाओ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स हमारे बिजनेस में बेटे वो होते हैं जो हमें दिखते नहीं। लिखिए प्लीज, these are the assets which can't be seen or touched, that is i.e.
which do not have physical existence, which do not have physical existence. For example, एग्जाम्पल में लिखिए गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, दिख रहा है सब, ट्रेडमार्क्स। अगर आपको अभी टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू बी ओवर, आपने आज घर से ये सारी टर्म्स की मीनिंग पढ़ के आनी है, नेक्स्ट पढ़िए जहां से मर्जी पढ़िए। टुमारो आई विल आस्क यू दीज 4 पॉइंट्स, प्लीज नोट इट डाउन, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है जी, दिस वी विल स्टडी tomorrow too. And बच्चे please try to be on time in the class. I have already shared attendance link, but those who have joined late, they may have missed it. So please note it down now and fill your attendance. Okay, so that's